Ladies and gentlemen, it is my honor and privilege to present to you two very, very frank people on this show that is called Frankly Speaking. And tonight we are going to speak frankly on issues of the society that should have been addressed decades ago, but finally we are talking about them. Joining me tonight on the show, Yami Gautam. Thank you very much for being in our studios. Haq is a film that is a film about women rights, equality, gender equality based on the landmark Shah Bano case. I'm just dying to talk about it and dying to get your views on it. And joining Yami Gautam is Imran Hashmi. Akha Bollywood ek side mein, Imran Hashmi ek side mein. Intimacy expert and consultant. Oh my God. साक्षात यहाँ हमारे स्टूडियो में serial kisser to intimacy consultant to lawyer now lawyer in Haq on a very, very ticklish issue, Shah Bano case, maintenance, rights of women. Where do I begin with? Imran Hashmi, was this a tough role for you to decide to do before I get into what the role was? No, it wasn't. But I'll tell you, in this film, I had to see it from two lenses. I think there was a two-pronged approach. I see it on an intuitive level. जब भी मैं script पढ़ता हूँ, script अच्छी लगती है, character अच्छा लगता है, it's a given. I had to see this film from another lens, from the lens of a Muslim. क्योंकि let's first put that aside. I think ये film generally आप generalize भी कर सकते हैं. ये किसी भी community और किसी भी generation के लोग इससे connect कर पाएंगे. But I think it was very important because the landmark case at that time in 1985 had two people from this community. तो मुझे सिर्फ देखना था कि the director and the writer उनकी viewpoint क्या है. Is it biased? The answer is no. It was a very neutral, it was a very balanced take इस case को लेकर. एक ऐसा take है कि बस एक आईना दिखा रहे हैं हम कि इस तरह ये case इन दो characters के point of view से play out हुआ था और उनकी life जिस तरह थी. And this is the way they were affected by it. And that balanced point of view, I think, I felt rest assured कि ठीक है, now I can get in this because I loved the character. I loved her character. I loved the nuance जहाँ पे इनकी love story इनके बीच अनबन होती है. Finally, there's that thrilling courtroom drama in the second half, which is spectacular. So it was a winner on the page for me. And I was like, I have to be part of this film. तो आप तो आ गए. Yami Gautam, how is it for you to play the role, the pivotal role inspired by Shah Bano? And Shah Bano case सबको पता है कि एक 62-year-old woman, 5 बच्चों की माँ, उसको डिवोर्स दे दिया गया है और आफ्टर द इद्दत पीरियड उसको कोई मेंटेनेंस नहीं मिलेगा. इतना कुछ इसके बारे में लिखा गया है, इतना कुछ पढ़ा गया है. आज की पॉलिटिक्स इस पर इतनी रिवर्बरेट करती है क्योंकि आज भी हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है. कुछ रिलीजन्स में अलग रूल्स हैं, महिलाओं के लिए अलग रूल्स हैं फॉर द मेन. हाउ डिड यू कम अबाउट दिस फिल्म? हाउ डिड यू अग्री टू डू दिस फिल्म? ऑफ कोर्स इट्स अ ड्रीम रोल फॉर any actor. I think the last sentence I think said it all. It is a dream role for any actor. मैंने जब पहली बार उनका नाम पढ़ा था, जिनकी हम बात करें, शाह बानो केस, जब it was making all the headlines and I think उस टाइम स्मार्टफोन्स भी नहीं थे, हम लोग हाई स्कूल में थे, और जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, and I still remember that image with her eyes, those haunting eyes. बहुत सिंपल पिक्चर, इट वाज जस्ट अ हेड शॉट, बट उसमें इतनी डेप्थ थी दैट इवन दो आई वाज अ टीनेजर बैक देन, बट आई रिमेंबर आई फेल्ट समथिंग सो डिस्टिंक्ट एंड सो peculiar about that image. And of course then I read about it कि और तो उतनी ही नॉलेज थी जितनी एक आम नागरिक को होती है न्यूज़पेपर पढ़ के. कट टू नाउ इन 2023 के आसपास जो डायरेक्टर हैं सुपरन एंड रीशू घर आए और उन्होंने बात की. मैंने कहा इट जस्ट फील्स लाइक आई हैव गॉन बैक इन सम पार्ट ऑफ 2000s वेयर आई एम अगेन हियरिंग, ऑफ कोर्स न्यूज़पेपर्स में इट वाज ऑलवेज, बट व्हाट इज इट अबाउट दिस केस दैट इट्स ऑलवेज रेलेवेंट, that's always spoken about. And so divisive. And so divisive.
क्या है इसके बारे में। तो जब मैंने उनका नज़रिया, उनकी लेंसिंग जब स्क्रिप्ट के ज़रिए मैंने पढ़ी, जो एक एक्चुअली बहुत सिंपल कहानी है बिटवीन टू पीपल अबाउट देयर लव, देयर रिलेशन, देयर सेपरेशन, व्हाट हैपन्स नाउ। वो रही हैं उनकी न्यूज़ और उनकी शख्सियत पब्लिक डोमेन में, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट हर। हमारे पास एक इमेज भी नहीं है उनकी। तो मैंने सिर्फ रिवर्स में सोचा कि मैं खुश तो मैं ऑफ कोर्स मैं बहुत हुई, आई वाज रियली एक्साइटेड, द एक्टर इन न्यूज़, थिंकिंग अ थाउजेंड थिंग्स एट दैट टाइम कि अच्छा मैं इसको ऐसे पोर्ट्रे कर सकती हूँ, हम ये कर सकते हैं वो, बट आई वाज लाइक होल्ड ऑन। जितना मुझे समझ में आया है उनका सोशल बैकग्राउंड रहा है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, व्हाट काइंड ऑफ वुमन, वो कैसी महिला होंगी जिनमें इतनी हिम्मत होगी वो एंड तक जाने की जहाँ पर वो गई। सो आई वर्क बैकवर्ड्स, व्हाट क्या कितनी करेज होगी आप में, कितनी हिम्मत होगी कि कितना कुछ उन्होंने सहा होगा उस टाइम में। 1980s की बात करें, आज आपके पास you're an accomplished person, you're one of the most looked up women in the country and doing so well for yourself. We belong to another industry where all of us have mics, we can express ourselves. We're talking about back in 1980s जहाँ पर ये कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, ये सब मुझे नहीं लगता ये टर्म्स आप इतने यूज थे या ओपनली नहीं थे। तो कितनी हिम्मत चाहिए एक ऐसी औरत को ये करने के लिए। सो ऑल आई हैड टू डू इज वाज काइंड ऑफ जस्ट, हर टेक से पहले चाहे हंसने का ही सीन क्यों ना होता था, मैं ज़रूर आंखें बंद करके वही इमेज जो मैंने देखी थी बचपन में मैं ज़रूर अपने जहन में लाती थी, just to remember that who I'm actually representing, not just one woman, but so many of us from different status, अलग religion हो आपका, कोई भी हो, किस भी एज की हो, at some level. पर आप एक वुमन की जो वो स्ट्रगल, जो चैलेंज उसका था, एब्सोल्युटली। बट इमरान हाशमी, आपसे पूछना चाहूँगी, आपने बहुत से रोल्स किए हैं, यू हैव डन द रोमांटिक हीरो, यू हैव डन सम ग्रे शेड्स, आपने नेगेटिव रोल्स भी कुछ किए हैं, ऑफ कोर्स इंटीमेसी कंसल्टेंट भी आप रह चुके हैं। उसके बाद एक ऐसा रोल जिसमें आप एंटी हीरो होंगे, क्योंकि आप एक महिला का हक मार रहे हैं। आपने दूसरी शादी की और पहली बीवी को आप उसका हक नहीं देना चाहते, और ऐसा नहीं है कि आपके पास है नहीं पैसा देने के लिए, आपके पास है, आपके बच्चे हैं, और आप एक ज़माने में शायद जब शादी हुई थी तो उस लड़की से प्यार भी बहुत करते थे, लेकिन उसके बाद भी आप उसको उसका हक, उसका मेंटेनेंस नहीं देना चाहते। ये करना, और you yourself are a Muslim. Did it play on your mind? आपके जहन में ये था कि मुस्लिम कम्युनिटी मुझे कैसे देखेगी अगर मैं ये रोल करूँगा जहाँ एक औरत जीतती है वो केस? Well, I think इस सवाल का जवाब पहले तो मैं ये देना चाहूँगा कि एक लेंस है जिससे मैं इस फिल्म को देखता हूँ, एंड दैट इज़ माई लेंस ऑफ अ लिबरल मुस्लिम, अ सेक्युलर इंडियन। मेरी फैमिली में मेरी शादी एक हिंदू लड़की से हुई 20 साल पहले, परवीन। हमारे घर में एक मंदिर भी है, हमारे बेटे जो हैं पूजा पढ़ते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं। माई मॉम वॉज अ क्रिश्चियन। तो एक मेरी जो माइंडसेट है, इट्स वेरी लिबरल एंड सेक्युलर। तो मेरी लेंस जो मैं इस फिल्म को देख रहा था, आई थिंक इट वाज एक्सट्रीमली न्यूट्रल, और आई एम फर्स्ट फेमिनिस्ट। जिस तरह मैं एक फिल्म, इस तरह की फिल्म जहाँ पे यू नो व्हाई शुड अ फिल्म ऑलवेज बी अबाउट द हीरोज जर्नी और द रिडेम्पशन और द हीरोज करेज। आई थिंक इवेंचुअली मेल आर्टिस्ट्स शुड ऑल्सो फैसिलिटेट एक ऐसी कहानी, एक ऐसा आर्क जहाँ पे अ वुमन गेट्स अ प्लेस इन द सन। आई थिंक इस जहाँ तक कि अहमद खान का कैरेक्टर अब्बास खान फिल्म में मैं कहूँगा कि ये एक ऐसा आदमी है जो अपने खुद के हक के लिए लड़ रहा है। इसकी एक थॉट प्रोसेस है अपनी कम्युनिटी को लेकर, अपने ट्रेडिशन को लेकर, एक परसेप्शन है अपने पर्सनल फेथ का। और विदाउट गेटिंग टू डिटेल इनटू दिस बिकॉज इट कैन गेट मर्की, तो एक कन्वीनियंस भी होती है जहाँ पे आप टिल्ट देते हैं, बिकॉज
एक मेल राइटियसनेस भी होती है. In a patriarchal society, we hide behind that tradition and righteousness. ऐसा होता चला आया ऐसा है. होता चला आ रहा था और इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं. And it is that righteous stand that many men take in our society, and it's not just about one community. This can go across the board in all communities through generations. And what does this do? ये eventually एक औरत को उसकी dignity, it costs a woman her dignity. So I think throwing light on a subject like that, जहाँ पे हाँ ये फिल्म प्रो विमेन है, ये टेक अवे था मेरा कि इट इज़ अ फिल्म विच इज़ प्रो विमेन. जब शाबानो अपने केस के लिए लड़ रही थी, उसको पता नहीं था कि वो अल्टीमेटली वो इतनी पीढ़ियों के लिए लड़ रही हैं. इवेंचुअली वो एक मूवमेंट बन गई. वो इतनी पीढ़ियों के लिए एक तरह से जनरेशंस वो फॉलोइंग दैट. आज भी पब्लिक डोमेन में जब हम इसका जिक्र करते हैं, इसकी बात कहते हैं कि अ वुमेन्स राइट टू इक्वालिटी, अ वुमेन्स राइट टू डिग्निटी, दिस गोज बैक टू 1985, जहाँ पे उन्होंने पहली लड़ाई लड़ी थी और सिर्फ अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए, बट वो डटी रहीं. एंड दैट इज़ द फैक्ट कि जस्टिस इज़ नॉट गिवन, इट इज़ फॉट फॉर. सो आई फाउंड ऑल दिस इन द स्क्रिप्ट सो नाइस एंड सो न्यूएंस्ड. और मुझे लगा कि यार ये अगर मैं इस स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं होऊंगा, आई वुड फील वेरी बैड. I want to facilitate this. I want to take it on. I'm a selfish actor. I want to be part of a film like this. And why not? अगर एक actor, लेकिन डर नहीं लगा कि जमाना क्या कहेगा? क्योंकि एक तरह से आज भी ट्रिपल तलाक बैन होने के बाद भी और 1985 से लेकर 2019 लगा वापस वो हक देने के लिए. और आज भी लोग कहते हैं कि आप शरिया में इंटरफियर कर रहे हैं, फेथ में इंटरफियर कर रहे हैं. आपको कहीं हेजिटेशन नहीं? देखिए, कोई भी क्रिएटिव प्रोसेस डर का सॉस अगर होगा वहाँ पे, उससे आप यू कांट मूव फ्रॉम दैट. अगर आप एक क्रिएटिव प्रोसेस को न्यूट्रली देखना चाहते हैं एंड इफेक्टिवली एक फिल्म बनाना चाहते हैं, यू कांट बॉदर अबाउट ट्विटर ट्रेंड्स, जो लोग कह रहे हैं. अगर इस फिल्म में लोग थिएटर के बाहर आते हैं, डिबेट्स होती हैं, बहस फिर से शुरू होती है जो तभी 1985 में हुई थी, तो हमारा काम हो गया है. अगर वो नहीं होता है, क्योंकि बहस से क्या होता है, अगर आपको किसी तरह का बदलाव चाहिए, आप पहले एक इशू पे एक फोकल पॉइंट डालते हैं, वहाँ से इस किस्म की जो डिवाइडेड हाउस है, इशू क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स विच इज़ ऑल इनकम्पसिंग, और दूसरा साइड था पर्सनल फेथ. दोनों अपनी तरफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है. Personal faith is sacred and sacrosanct. Constitutional rights is for everyone. But इन दोनों के बीच जो टकराव जब आती है, वो एक बहुत ही it is पेचीदा सवाल. हाँ, एक बहुत ही पेचीदा चीज़ है. तो you have to be prepared for that. And like I said, अगर debates होती हैं इस फिल्म के बाद, it's a divided house in the theater. It's the nature of the film and subject. यामी गौतम, आपको ये सोचकर लगता है कि 1985 में शाबानो जीती थी कोर्ट में जी, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने क्या किया था जी, गवर्नमेंट ने एक अलग लॉ लाकर उसके वही फाइट को नील बटे सन्नाटा कर दिया था. और फिर 2019 में ट्रिपल तलाक क्रिमिनलाइज हुआ, बैन हुआ. जी. ये इतनी जद्दोजहद के बाद अगर इतने साल लगे फ्रॉम 1985 टू 2019, आपको लगता है कि ये जो फाइट है इस फिल्म के थ्रू आप लड़ रही हैं कि सारी महिलाओं के लिए, ऑल वुमेन शुड हैव इक्वल राइट्स, विच इज़ द बेसिक मिनिमम जो 21वीं सदी में सबके लिए होना चाहिए, जो हम टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं. आपको लगता है यू आर पार्ट ऑफ दैट फाइट? डू यू फील आफ्टर दिस फिल्म? एब्सोल्युटली. आई थिंक कहीं ना कहीं जो आपकी कुछ ऐसी फिल्म चॉइसेस होती हैं, ज़रूरी नहीं अगर मैं इसी फिल्म में अगर कोई जैसे बोलते हैं साइको किलर हूँ तो मैं वो उस तरह की कुछ सोच रखती हूँ रियल लाइफ में. इट्स अ कैरेक्टर, राइट? इट्स फिक्शन, इट्स एंटरटेनमेंट एट द एंड ऑफ द डे, सो वट एवर. बट कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जो कहीं ना कहीं जो आप एक पर्सनल तौर पर आप बिलीव रखते हैं, निष्पक्ष होकर, निडर होकर, और अगर वो अच्छी स्क्रिप्ट बनती है और मुझे मौका मिले ऐसे सब्जेक्ट्स का हिस्सा बनने का, 2 बार पहले मिल चुका है, तो और ये
उससे बहुत अलग है, एक अलग ही डायमेंशन है और एक ऐसी जद्दोजहद है जैसे आप कह रहे हैं जो बहुत सालों से है। आज भी मतलब जिस तरीके से लोग सड़कों पर निकल आए थे, एक रूल बना था स्ट्रे डॉग्स पर, बहुत हंगामा हुआ था. What my views are on it, that's different. But the fact is, so many people came together, so many people. तो क्या हम कहाँ हैं फिर उसमें? हम ज़रूर, right? Which is in a very subtle yet in a very underlined way film यही कह रही है कि हम मतलब यहाँ बेसिक ह्यूमन राइट की बात हो रही है. ये कोई रिलीजन की बात नहीं है, कोई अटैक नहीं है किसी रिलीजन पे, कुछ नहीं है. दिस इज़ एवरी ह्यूमन हैज़ अ राइट टू डिग्निटी, टू ऑनर. एंड ज़िंदगी एक ही बार मिलती है और अगर किसी एक का डिसीजन किसी दूसरे इंसान का पे डिपेंडेंट हो और इस तरह से हो कि आप ही नहीं आपकी आने वाली जनरेशन्स भी उससे अफेक्ट होंगी, देन वी मस्ट थिंक थ्रू एंड मेक श्योर दैट as far as laws are concerned वो बिल्कुल फेयर हो, वो जस्टिफाइड हो, वो इक्वल हो. यामी गौतम, आप राइट विंग और वी मस्ट डिस्कस दिस वेरी ओपनली क्योंकि हमारा सोसाइटी डिवाइडेड है. एक तरफ है राइट विंग और एक तरफ आपने लिबरल कहा, मैं उसको कहूँगी एक लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम. अगर आप यहाँ पर हैं तो आपको ये लोग बर्दाश्त नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं, यानी कि राइट विंग वाले. इस तरह की आजकल हमारी कॉन्वर्सेशन नैरेटिव्स और डिबेट्स हैं सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, इन द पब्लिक ओपिनियन स्पेस. तो आप राइट विंग की डार्लिंग हैं, आपने उरी जैसी फिल्म्स की हैं, 370 की है, प्रोग्रेसिव चेंजेस दैट a certain part of India wanted, but there has been opposition to that within the country also. आप अब हक लेके आई हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो ये रिफॉर्म्स, जनरल रिफॉर्म्स जो नॉर्मली होने चाहिए. मैं नहीं कह रही कि एक रिलीजन में ज़्यादा रिफॉर्म की ज़रूरत है, दूसरी में नहीं है. सब जगह सोसाइटी में रिफॉर्म की ज़रूरत हमेशा रहती है. बिल्कुल. लेकिन यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस फेथ की जो डिबेट है, वेयर डू यू स्टैंड ऑन दैट? इट्स अ ट्रिकी वन क्योंकि फेथ बहुत ही पर्सनल है हर एक इंसान के लिए. हर एक का मतलब क्या है एज फार एज फेथ इज कंसर्न इज़ वेरी डिफरेंट. आजकल विद टाइम आप अवेयर होते हैं कि रिलीजन कई बार और होता है, स्पिरिचुअलिटी और होता है. एंड अनलेस यू आस्क दीज क्वेश्चंस इवन यू डोंट आई थिंक रियली थिंक अबाउट इट. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मे बी इट्स लैक ऑफ माई नॉलेज. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम I actually had to understand from someone this right wing and left wing concept. I've been a social science student, but for some reason it had never bothered for me to look up and dig deep into it. What does it actually mean? I knew it only at a surface level, but I said, okay, so I am. आपको लगता नहीं है कि बॉलीवुड में इसकी एजुकेशन है? बॉलीवुड खुद तो बटा हुआ है. तो वहीं से मुझे नॉलेज ज़्यादा होगी. मुझे नहीं लगता मुझे किताबों से ज़्यादा मिला, मुझे यहाँ पे एक्सपीरियंस थोड़ा अलग हो. मैंने कहा नहीं, आपको कैसे पता मेरी क्या है पॉलिटिकल व्यूज? देयर इज अ रीजन व्हाई व्हेन वी वोट इट्स स्टिल सीक्रेट बैलेट. यू डोंट नो दैट, राइट? बट कुछ चीज़ों को, और मैं आज की लड़की हूँ, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, मैं शादीशुदा हूँ. आई एम अ मदर नाउ, आई एम वर्किंग इन इंडस्ट्री, स्टैंडिंग ऑन माई ओन विद डिग्निटी व्हाट एवर आई डू. तो मैं इतना मान सकती हूँ कि मैं एक लॉजिकल डिसीजन ले सकती हूँ कुछ चीज़ों को लेकर, राइट? कुछ आई मे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ऑन सम थिंग्स, आई मे बी स्टिल ओके. ज़रूरी नहीं है हर बात. जैसे मैं कुछ जर्नलिस्ट होते हैं उनको तो बहुत प्रॉपरली बताना पड़ता है, देखिए हर इंफॉर्मेशन कंटेंट नहीं है विच इज़ फॉर पब्लिक कंजम्पशन. कुछ चीज़ें आर वेरी वेरी पर्सनल. बट एज फार एज दीज व्हेन यू आस्क्ड अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन एंड फेथ, that's in a country like India where language changes हर 10 किलोमीटर के बाद एक ही प्रदेश में, राज्य में भाषा अलग है. मैं हिमाचल से भी हूँ, मैं चंडीगढ़ में पली बड़ी हूँ, पंजाब, ये पूरा बेल्ट आई थिंक आई फील पार्ट ऑफ इट. वर्किंग इन महाराष्ट्र, ऑफ कोर्स मुश्किल है बैलेंस करना, मुश्किल है एक ऐसा कोई आंसर देना जिसमें बहुत एक बैलेंस हो. मैं इतना ही कहूँगी कि हर धर्म भी वो यही सिखाएगा कि टू बी फेयर, टू डू योर जॉब एंड टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी. अगर चाहे आप भगवत गीता का रेफरेंस ले लीजिए, एंड नॉट इंटरप्रेट इट फॉर योर कन्वीनियंस.
अगर आप किसी भी इस तरह के रिलीजियस ग्रंथ को आप पढ़ते हैं तो मूल सार यही है कि अपना धर्म आपका कर्म है, और कर्म सही रखना आपकी वो सबकॉन्शियस माइंड में, आपको अपना सच हमेशा पता होता है कि ये सही है कि गलत। आप किसी को कुछ पोलिटिसाइज करना है, वो काम है, वो गोल है, वो अलग चीज़ें हैं। बट टू जस्ट टॉक एट अ ह्यूमन लेवल, आई डोंट थिंक एनीवन कैन डिफेंड कि अगर एक औरत को तकलीफ़ है, उसके बच्चे हैं या उसकी लाइफ है और वो सफ़र कर रही है, वो कैसे कोई जस्टिफाई कर सकता है, और वो एक डिस्पोजल काइंड ऑफ है ऑफ अनदर मैन टू फॉर हिम टू डिसाइड हर लाइफ एंड हर फेट जैसे वो चाहें। बहुत सही कहा आपने। तो इमरान हाशमी साहब, एक आदमी तय करेगा कि एक औरत कैसे जिएगी, उसके बच्चे कैसे जिएंगे भी कि नहीं जिएंगे, क्योंकि अगर वो वर्किंग नहीं है, उसके 5 बच्चे हैं जैसा इस फिल्म की स्टोरी में है और शाहबानो के केस में है, वो कैसे करेगी? एक मुद्दा है, ये मुद्दा फेथ से डिसाइड होना चाहिए, और क्या कॉन्स्टिट्यूशन अलग होना चाहिए? क्योंकि ये रिलीजियस इशू है, ये डिवोर्स के बाद कुछ देना, या एक सिविल मैटर है जो कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस होना। पहले तो इसी बात की हमें कहीं ना कहीं रेजोल्यूशन चाहिए। आप कैसे देखते हैं? आई मीन देखिए, ये तो एक एज ओल्ड प्रॉब्लम है जो सदियों से चली आ रही है। मुझे पता नहीं, आप शायद कह सकते हैं कि अगर सिचुएशंस डिवोर्स के बाद और भी मर्की हो गए हैं, और भी संजीदा और कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं, या अभी भी वही हैं जो सदियों से वो चीज़ चली आ रही है। बट ये चीज़ है जहाँ पे मर्द एक और किसी भी कम्युनिटी के हों, इट्स अ वेरी कन्वीनियंट थिंग जहाँ पे शादी उस मोड़ पे आके रुक जाती है जहाँ पे दोनों के बीच अनबन शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद जो मर्द है बहुत ही कन्वीनियंटली वांट्स टू वॉश हिज हैंड्स ऑफ द रिलेशनशिप, तलाक या डिवोर्स दिया जाता है। गॉड फॉरबिड, अगर वो औरत इंडिपेंडेंट नहीं है, ख़ुद के लिए फेंड नहीं कर रही है, एंड ये सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर बच्चे हैं इन द मिक्स, ही पुट्स हिज हैंड्स अप एंड सेज दैट मैं या तो एक बेसिक मेंटेनेंस दूंगा या मेंटेनेंस दूंगा ही नहीं। औरत दर दर भटकती है, कोर्ट रूम के दरवाजे खटखटाती है। और हमारी फिल्म में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन भी है जहाँ पे ये, विदाउट गिविंग टू मच अवे, इनको पता भी नहीं है कि ये एवेन्यू क्या होता है जस्टिस सीक करने का। वॉट इज़ द एवेन्यू, हाउ डू आई गो देन सीक फॉर दैट जस्टिस? इफ़ यू आर अनएजुकेटेड, इफ़ यू कम फ्रॉम अ सर्टन अपब्रिंगिंग जहाँ पे आपको पता नहीं है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी टू गो थ्रू। शाहबानो ने इतने साल वो लड़ी हैं ये केस थ्रू ऑल दीज कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। It's a big thing, and that's why she's a testament. She's an example, and it comes down to this thing that people, मर्द इन चीज़ों के पीछे छुपते हैं। एक तो righteousness, a male-driven convenience. Righteousness or convenience? No, righteousness. Hiding behind tradition also is a kind of righteous. Convenience. Is convenience also righteousness? ना कि ये tenets हैं, ये dictates है of what has been happening for generations, और आप इसको क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? इसमें आप दखल कैसे दे सकते हैं? पर आज का मर्द उसे सोचना नहीं चाहिए कि दुनिया बदल चुकी है। बट आप किस मर्द की बात कर रहे हैं? you're talking about a mindset where yes, there are men like this, there are men who, जो एक evolution हुआ है, कुछ मर्द होते हैं जो sensitive हैं एक वुमन की डिग्निटी को लेकर, वो मेंटेनेंस देंगे। फाइन, आई मीन आवर कंट्री इज नॉट प्रो डिवोर्स, इफ यू रियली सी दैट, इट्स ऑलवेज प्रो मैरिज। आप जब तक आप रह सकते हैं इस मैरिज में, बना के रखो। टॉक्सिसिटी, हाँ टॉक्सिसिटी भी हो घर में, फिर भी आप बना के रखो, क्योंकि एक तो फैमिली की इज्जत होती है, बाहर किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए, बिकॉज ये तो फिर इट कम्स ऑन द वुमन अगेन, सोसाइटी इट कम्स ऑन द वुमन, राइट? इट टार्निशेस हर इमेज। तो वो भी एक मिक्स है इस चीज में। बट कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो इस चीज को लेकर सेंसिटिव हैं, दे विल पे फॉर द कस्टडी, दे विल they will take care of the kids, they will take care of the wife, but kuch my basic question to you is not about the societal, my issue is कि ये issue settle कैसे होना चाहिए, शरिया के थ्रू या कॉन्स्टिट्यूशन के? बड़ा सिंपल सवाल है, इसका कोई सिंपल जवाब नहीं है। ये तो हमारे फिल्म में जब केस का जो इवेंचुअल वर्डिक्ट था, जब वर्डिक्ट निकला था,
उसके बाद भी देश दो हिस्सों में बढ़ चुका था. We have to accept the judiciary on what the eventual outcome was. लेकिन आपको पता है उस वक्त सेंटिमेंट क्या था. जैसे मैंने कहा कि एक पर्सनल फेथ रिलीजन एक बहुत ही सैक्रोसैंक्ट चीज़ है, एक बहुत ही सेक्रेट चीज़ है. आप इसमें पले बड़े हो, यू आर ब्रॉट अप इन द एनवायरनमेंट, दोज टेनेंट्स, आपने देखा है कि आपके माँ बाप क्या करते हैं, योर फोर फादर्स, whoever, ग्रैंडफादर, जो भी आप, बट दैट्स इनग्रेन्ड इन योर डीएनए. फिर आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स इज ओके, दैट इज अ इवॉल्व्ड थिंग कि आप उसके बारे में भी सोचना चाहोगे, बट इट्स फर्स्ट दिस. तो एंड फॉर पीपल हु फील दैट अच्छा ये ऑल इनकम्पसिंग है, राइट सबके लिए है, इसलिए दो हिस्सों में बढ़ चुका था. सो देयर इज नो सिंपल आंसर टू दिस. इट Why is it not simple, यामी गौतम? Because मैं समझती हूँ कि अगर हक चाहिए, किसी चीज़ का भी हक, चाहे वो सिंपल सी चीज़ हो, वोटिंग का हक हो, चाहे वो नॉर्मल जो फंडामेंटल आपको सुविधाएं मिलती हैं उनका हक हो, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से. लेकिन रिलीजियस, और ये मैं रिलीजियस नहीं मानती, डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया, ये उसके बाद की एक प्रैक्टिकल सेटलमेंट का इशू है. ये रिलीजन का इशू नहीं है, ये जीने का इशू है. बिल्कुल. ये क्यों शरिया के थ्रू होना चाहिए? मैं ये सवाल. बट आप प्रैक्टिकली बात कर रही हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी नहीं आती है, यहाँ पे जज्बात आ जाते हैं, यहाँ पे इमोशंस आ जाते हैं. तो प्रैक्टिकली देयर इज नो प्रैक्टिकलिटी इन द सिचुएशन. इट इज अ वेरी वेरी इमोशन तो फिर उस औरत के लिए भी आने चाहिए जिसके लिए जीने की भी कोई राह नहीं. नो आई कंप्लीटली एक्सेप्ट. एक्चुअली फिल्म देखेंगे तो मैं जो भी मैं शाजिया का किरदार निभा रही हूँ और ये अब्बास है फिल्म में, जो लास्ट का जो कोर्ट सीन होगा, ऑफ कोर्स फिल्म एक लीगल बैटल में उतरती है एक सर्टेन पॉइंट पे, वो बहुत विच इज द कोर ऑफ टू आर्गुमेंट्स. टू आर्गुमेंट्स. मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी, ऑफ कोर्स जब मैंने इनकी स्पीच पढ़ी, इट वाज सो करेक्ट. आपके सामने करेक्ट, राइट और रॉन्ग बिल्कुल आपको पता है क्या सही है, पर जो ये भी कह रहे हैं, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही इज ट्राइंग टू से. आई थिंक आपकी कंडीशनिंग इस तरह से हो रही है कि आपको लगेगा ये कुछ गलत नहीं है. दिस इज सो माइंड फॉर्म्स अ वे टू मेक टू जस्टिफाई थिंग्स बिकॉज that's how you're conditioned, right? Education doesn't matter. Exactly, of course it matters. Lawyer है, अब्बास lawyer है. It matters, but I think that moral consciousness, that जिसकी आप बात कर रहे हैं, I think जब कोई, कितनी सारी ऐसी चीजें होती हैं, कितने सारे ऐसे कुछ crimes भी होते हैं जो legally which might not be a crime, but morally they are wrong, socially they are wrong. Correct. So I think it's it's about blurring those lines and making it very clear that no, this is absolutely wrong, and maybe what is being interpreted, maybe that's not right. Maybe that is what जो film कहना चाह रही है, शायद maybe that is what is written there in the first place. One term, one word can have multiple meanings also. Now it depends कि आपने क्या choose किया है अपनी सहूलियत के लिए, जो मुझे समझ में आता है. इमरान हाशमी, आपने कहा आप अपने घर में भी बहुत सेक्युलर हैं, आपकी वाइफ हिंदू हैं, आपका बेटा मंदिर भी जाता है, नमाज भी पढ़ता है, लेकिन हमारे यहाँ तो ये है कि अगर वो जो एक कॉन्सेप्ट ऑफ लव जिहाद है कि मतलब अगर मुस्लिम लड़का है और हिंदू लड़की है तो वो कन्वर्ट हो गई. इट इज़ अ कन्वर्टेड कन्वर्जन का एक फॉर्मूला है. एक उसके साथ एक अलग तरह की बहस छिड़ जाती है. ये बहस, ये फॉल्ट लाइंस हमारे सोसाइटी में हैं. अब इससे जेनरेशनल फाइट हो सकती है या एक ओवरऑल रिफॉर्म, और मैं अगेन कह रही हूँ किसी एक कम्युनिटी में नहीं, रिफॉर्म्स की ज़रूरत हर कम्युनिटी में है, हर फेथ में है, हर प्रैक्टिस में है. हमारे यहाँ जिस तरह की हिंदुओं में भी शादियां होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड, डाउरी, ये वो सब कुछ, मतलब देयर हैज बीन अ फेज ऑफ रिफॉर्म्स दैट हैज आल्सो गॉन थ्रू, एंड राइटली सो. मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या हमारी सोसाइटी इन रिफॉर्म्स के बारे में डिबेट करने को तैयार है या फिर पॉलिटिकल एजेंडा बहुत हावी है? ये बात आप बता सकती हैं, क्योंकि मैं तो एक बहुत ही एपॉलिटिकल इंसान हूँ, तो मुझे इसके बारे में पता नहीं है. मैं बस इसके फिल्म बारे में, आपने बहुत पॉलिटिकल की है, आप ये कह नहीं सकते. आई थिंक मुद्दा जो है इसमें, इट इज़ लाइक आई सेड, एक औरत की डिग्निटी और एक प्रो वुमेन की फिल्म है. मुझे ये बात, मैं इस चीज़ से एक्सट्रैपलेट करता हूँ और मुझे लगा कि ये, जैसे आपने कहा
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये मैसेज लोगों तक जाए। और दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स हैं, जैसे यामी ने कहा कि एक अब्बास खान का भी आर्ग्यूमेंट है, और जो लोग फिल्म देखेंगे एंड में उनको लगेगा एक सेकंड के लिए कि अच्छा वैलिड पॉइंट टेकन। अभी ये आप कह सकते हैं कि अच्छा ये कन्वीनियंस में उसने इसको एक वेब में एक तरह से परोस के कोर्ट रूम में कह दिया। आई डोंट गिव टू मच अवे इन दिस कॉन्टेक्स्ट, जो लोग फिल्म जाके देखने वाले। एंड ऑफ कोर्स बानो के कैरेक्टर का भी एक जो अल्टीमेटली जस्टिफाइड जो उनका मोनोलॉग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट I don't know. I think you are the best person to answer this question. I'm interviewing you guys. मैं कभी अपनी belief system को किसी और पे नहीं डालूंगा. This comes from from my mindset at home. It starts with enforcing your belief system. कि मेरा faith सही है, मेरा belief system है. This is my way or the highway. This is the fundamental problem of the core issue. कि we don't respect someone's belief system. अगर कहीं उस पे कहीं एक डिस्कशन हो और देयर इज सम काइंड ऑफ रिफॉर्म इन दैट थ्रू, आई डोंट नो हाउ यू डू इट, ऐसी फिल्म से ही तो कहीं ना कहीं एक कॉन्वर्सेशन शुरू होगा और कहीं एक चेंज प्रोपेल होगा। तो ये Do you see this debate as an interference in your faith? Because यही आर्ग्यूमेंट हमेशा आता है कि अगर आप ये मुद्दा उठा रहे हैं यूसीसी का, तो आप हमारे फेथ में इंटरफेयर। I wouldn't see it, but again I am talking from a different point of view. हमें सभी लोगों के पॉइंट्स ऑफ व्यू देखने पड़ेंगे, and I am not going to really, I'm not just saying that okay, it's justified, this is the only way that it should be done. Someone who's deeply wedded to their personal faith, legitimate the way they are thinking, but we have to address that. We have to sit down और कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक बहुत ही empathetically उसको you have to catch the bull by its horns and just kind of address it and not don't make it a conflict situation. I think वो conflict भी एक चीज़ हो जाती है जहाँ पे things flare up, जहाँ पे you're wedded to your tenets of your religion, और फिर वो चीज़ मक्खी हो जाती है। एक सभ्य डिबेट की ज़रूरत है इन मुद्दों पर यामी, या हम इतने डिवाइडेड हैं एज अ सोसाइटी, हम इतने पोलराइज्ड हैं एज अ सोसाइटी कि ये जब मुद्दा आता है तो हम फ्लेयर अप होते हैं। बिल्कुल ज़रूरत है। अगर किसी विषय पे या कोई, जैसे अभी हम हक फिल्म की बात कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट है फिल्म का, जो सब्जेक्ट है, अगर डिबेट ना हो, अगर डिस्कशन ना हो, इट्स डेड, इट डजंट मीन एनीथिंग देन। सो द फैक्ट कि अगर डिबेट है, अगर नॉट विद एन इंटेंशन कि अच्छा कुछ कंट्रोवर्सी करते हैं, ये वो वाला पीआर ना आपको ज़रूरत है ना हमें ज़रूरत है। हमने एक सिंपल कहानी कही जो हमें लगा हमें कहनी चाहिए, बतौर आर्टिस्ट, बतौर एन एक्टर, हमने वो कही। एंड जस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर शेयरिंग दैट इस फिल्म को यूएई में in terms of censorship there are no cuts and it's 15 plus, मतलब यूनिवर्सल वॉचिंग। बिल्कुल। तो अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, that means this film is not here to antagonize anyone from any faith, absolutely not. इससे बड़ा I think evidence एटलीस्ट बैठे बिना फिल्म रिलीज के तो देना थोड़ा मुश्किल है। you're not making film on only about one community, no. हमारे लिए जितनी मेजॉरिटी जनता हमारे साथ जुड़ेगी, इट्स बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे, राइट? इफ यू आर रनिंग अ बिजनेस एंड सो आर वी, सो बट वी आर काइंड ऑफ हेल्ड टुगेदर बाय दिस थ्रेड, राइट, व्हिच कई बार सिनेमा इन्फ्लुएंस करता है सोसाइटी को, कई बार सोसाइटी इन्फ्लुएंस करती है कि अच्छा हमें इस पे सब्जेक्ट पे फिल्म बनानी चाहिए। यहाँ थोड़ा ओवरलैप कहीं ना कहीं कर रहा है और अच्छी बात है। अगर डिबेट या डिस्कशन नहीं होगी तो बदलाव कैसे आएंगे? तो ये बदलाव की तरफ पर इमरान हाशमी, मैं एक और सवाल भी पूछना चाहूँगी। शाहबानो के ओरिजिनल केस में AIMPLB अब्बास खान के साथ था, यानी कि जो आपका एक हस्बैंड वाइफ की लड़ाई में एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन पार्टी बन गया था। शाहबानो भी एक मुस्लिम औरत थी, उसके हक के लिए नहीं लेकिन मर्द के हक के लिए खड़ा हो गया था। आई डोंट नो हाउ यू फील, पर मैं एक औरत हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं इस बात पर सवाल ज़रूर उठता है कि क्यों मर्द का हक और औरत का हक नहीं। इसको कैसे आंसर करें? आई थिंक थिंग्स हैव चेंज्ड राइट नाउ। आई थिंक अगर आप रेट्रोस्पेक्ट में देखेंगे तो उस वक्त शायद
देखिए अभी पेट्रियार्की तो अभी भी इट्स वेरी प्रेवलेंट इन आवर सोसाइटी। वो तो पूरी society में है। डोमिनेंस होता है और औरत इसमें पिस जाती है। कोई भी सिचुएशन हो, डिवोर्स हो या एनीथिंग। हाँ, इतने सालों के बाद मैंने देखा है, खुद मैं ये देख सकता हूँ खुद की इंडस्ट्री में, टॉकिंग अबाउट विमेन एम्पावरमेंट एंड थिंग्स, हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड फॉर विमेन ओवर द इयर्स। जब मैंने हमारी इंडस्ट्री में हमारी शुरुआत हुई थी, मेरी शुरुआत हुई 2003 में, देयर वाज नॉट वन वुमन ऑन अ फिल्म सेट, राइट? अभी इतने सारे महिलाएं आ गई हैं फिल्म सेट पे, उनको काम मिल रहा है। ऑफ कोर्स देयर आर प्लेसेस वेयर देयर इज अ कॉम्प्रोमाइज, देयर आर सिचुएशंस जहाँ पे उनकी डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। उस वक्त 1985 में हुआ था, अभी भी होता है। But this is an age-old thing, and I don't think it's not limited to our country. This goes across the board. This is in a lot of different communities through generations. जैसे आपने कहा कि it's very important कि हम अब भी डिस्क्रिमिनेशन होता है बॉलीवुड में। बॉलीवुड में अभी ये कह सकती हैं कि जो कहते हैं पे डिस्पैरिटी हो या अलग अलग चीजें हो, it is something that is evident. People don't talk about it, but it's a better place than it was in probably 40 years ago. So But it's still not that equal. But we are taking steps. We are taking steps. We are taking steps to a better future. I think that's the silver lining. अभी आप नहीं कह सकते हैं कि ओवरनाइट चीजें बदल जाएंगी। जो हम 85 के केस से हमने देखा था और जो प्रेडिकमेंट थी औरतों की तभी, it has gotten slightly better. And it inshallah will get better as time goes by. I look at the silver lining. आप कह रहे हैं आप 2003 में ज्वाइन किए थे, 22 साल, दैट इज 2 जनरेशंस। नॉर्मली 10 साल में एक जनरेशन चेंज होती है, लोग कहते हैं। 2 जनरेशन के बाद भी आज भी डिस्पैरिटी है 2025 में। यामी गौतम, डिस्पैरिटी है, इज इट वेरी एविडेंट? इट्स प्रीटी एविडेंट। अगर आप किसी भी इंडस्ट्री के माध्यम से किसी इंडस्ट्री जो भी हिस्सा है इसका बात करें, दे टेल यू इट इज़ एविडेंट, बट आई कैन ऑल्सो टेल यू कि बहुत बदलाव भी आए हैं। एंड आई थिंक एज ही सेड, आई फुली एग्री विद हिम, जनरेशंस लग जाते हैं बदलाव लाने में। अगर आज मैं यहाँ बैठी हूँ या जिस तरह की मैं फिल्में कर रही हूँ, वो भी किसी की बदौलत है। किसी ने मदर इंडिया की है एक टाइम पर, किसी ने स्मिता जी रही हैं एक वक्त पर, श्रीदेवी जी रही हैं, नूतन जी रही हैं, मधुबाला जी रही हैं, वहीदा जी रही हैं, बहुत सारी एक्ट्रेसेस रही हैं जिन्होंने अपना नाम, अपना छाप उस वक्त छोड़ा है जब इसे बोलते हैं एक मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री रही है। सो व्हाट डज इट टेल यू? इट टेल्स यू दैट आप लगे रहिए काम पर। यू हैव टू बी रियली गुड एट योर वर्क। आई कैन नॉट अफोर्ड टू मेक एनी मिस्टेक्स। बट व्हाट हैपेंस, यंग मदर, आप 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड करें, आपको मिलेगी? नहीं, आई ऑल्सो हैव टू रियली थिंक थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसका एक लाइन में आंसर करना मैं ऑनेस्टली बहुत मुश्किल है। हम एक इस ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहां आज हम एक स्टूडियो के अंदर काम कर रहे हैं और कल शायद एक पेड़ के नीचे हमारा सीन होगा, बारिश हो गई और हमें चाहिए धूप थी, तो क्या होगा? सो आवर्स इज डिपेंडेंट ऑन लॉट ऑफ लॉजिस्टिक्स। कैन थिंग्स गेट बेटर इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? एब्सोल्युटली यस, व्हाई नॉट। अगर आप प्लानिंग करें कुछ चीज़ों की तो क्या कुछ नहीं आप अचीव कर सकते, फॉर द बेटरमेंट, फॉर द फिल्म, फॉर द बजटिंग ओनली। बट ये बहुत एक सब्जेक्टिव मैटर है, एंड दैट्स रियली बिटवीन द एक्टर एंड द प्रोड्यूसर। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। इस फिल्म पे ही मेरे बेटे का मुंडन था ऑन अ सर्टेन डेट, एंड आप जानते हैं हिंदू धर्म, वो जो एक डेट निकाली जाती है, 2-3 ऑप्शन ये होते हैं और वही जो मुहूर्त होता है, इट्स वेरी सैक्रोसैंट, इट हैज़ टू बी डन दैट डे। वो पैकअप डे के बहुत आसपास थी, तो मैंने सिर्फ रिक्वेस्ट की अपने टीम से, अपने डायरेक्टर और अपने फर्स्ट से, दैट इज़ इट पॉसिबल कि उससे पहले, क्योंकि आसपास ही है डेट, पैकअप हो जाए। सर हाँ पॉसिबल, व्हाई नॉट, विल फिगर आउट। एंड मैक्सिमम हमने टाइम इसलिए रखा था कि आपका जो फिनाले, आप दोनों का जो सीन है, हम आप पे प्रेशर नहीं डालना चाहते कि अरे, क्योंकि बहुत लंबे लंबे डायलॉग्स हैं उसमें, देयर एक्चुअली लिटरली 8-9 मिनट्स का मोनोलॉग्स हैं, दैट डजंट मेक इट अ लेंथी फिल्म प्लीज। तो अगर इफ इट हैपेंस, ऑफ कोर्स विल फिगर इट आउट। तो इट हैपेंड। तो बहुत चीज़ें अंडरस्टैंडिंग पे भी बेस्ड है। मेरे लिए बहुत ज़रूरी पे तो है ही। सी देखिए, अगर किसी मेल एक्टर की फिल्म वर्क करती है तो जो एकदम से जो हाइप और चीज़ें होती हैं वो बहुत है। अगर एक आई डोंट बिलीव इन एनीथिंग कॉल्ड फीमेल लेड फिल्म। अ फिल्म इज़ अ फिल्म,
पर अगर एक एक्ट्रेस का जो एक अगर हम पे की बात करें या फाइनेंशियली बात करें, वो एक सर्टन लेवल पे आने पे वो टाइम लगता है. और वो अगर मैं एक्सेप्ट कर, आई एम नॉट हियर दैट आई एम गोइंग टू fight for it by talking about it. I'll have to work consistently to be able to make my point. I'll have to come to that level. That means I have to be so good at my work that I don't have to, maybe, of course, as I said, discussion in every matter must be. जब तक discuss नहीं करेंगे, problems कैसे समझ आएंगी? So this is a very subjective matter between, I feel, a producer and also an actor, apart from, of course, other things. I know. Change झंडा लेकर निकलने की that kind of feminism जो हम पहले 90s में 80s में देखते थे, उस तरह से I think आजकल change और reform नहीं होता. नहीं होता, but you know, I noticed something. I noticed something अपने ही को. My first film was in 2012, Vicky Donor. इसी के दौरान मैंने कुछ चेंज, एक जो शिफ्ट देख रही हूँ, इज्जत, रिस्पेक्ट. हमारी फिल्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कभी कभी प्यार काफ़ी नहीं होता, बट हमें इज्जत भी चाहिए. जो इज्जत है एज अ वुमन, इज समवन रिस्पेक्टिंग यू और नॉट, राइट? इट्स नॉट अबाउट जस्ट बीइंग पोलाइट, बट हाउ मच समवन इज रिस्पेक्टिंग यू बिहाइंड योर बैक. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. कि क्या अच्छा ये अब यू नो 2 फिल्में चल गई तो अब आप ज़्यादा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं. शुड फील कि आपका हक है जो आप बोल रही हैं, जो या आप कोई भी बोल रहा है, आपका ये हक है. जब हक राइटफुली वो जो होता है वो आपको समय आने पर ज़रूर मिलता है, और आप ही के माध्यम से मे बी शायद हो सकता है 10-15 साल बाद ये क्वेश्चन हो भी ना. विल बी वेरी हैप्पी. आई थिंक फॉरगेट अबाउट पे डिस्पैरिटी. एक जो माइंडसेट होती है, फॉर एग्जांपल इवन लेट्स फॉर एग्जांपल से एक फीमेल ड्रिवन फिल्म है जहाँ पे, इफ़ यू डोंट लाइक द टर्म, जहाँ पे एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, एक जर्नी है, एक वुमन की रिडेम्पशन है. द मेल काउंटर पार्ट ऑल्सो हैज़ एन इक्वली इम्पॉर्टेंट वेटेज इन द फिल्म. बट आप ये फिल्म स्क्रिप्ट 95% एक्टर्स, मेल एक्टर्स विल बेल ऑन दैट स्क्रिप्ट. अच्छा, ये एक बेसिक माइंडसेट है. ये कहाँ से आता है? ये एक उसी माइंडसेट से आता है जहाँ पे यू फील दैट दिस इज macho hero. It is always supposed to be the male-driven story. It is the male's courage. It is a display of that. He has to come and save the day. How is it that she's taking this line in the end and she's victorious? ये basic सी चीज़ हैं. These are spoken or not spoken about in whispers. आप कभी इसको आपको you'll never hear it. It's in hushed tones. लेकिन आई थिंक इट्स एविडेंस कि ऐसी कितनी फिल्में बनती हैं एक साल में, फॉरगेट अबाउट साल, एक डेकेड में कितनी फिल्में बनती हैं कंपेयर टू द मेल ड्रिवन फिल्म्स इन द इंडस्ट्री, राइट? और ऐसा नहीं है कि these films don't do well at the box office. And kudos to you, Imran Hashmi, because you took this film where the female protagonist has a very strong role, message, and a victory in the end. And you defined it. I did it back in 2010. I did it in Dirty Picture. Yes. I was coming after a string of hits and people said, why are you doing this? I said, I love the story. I love this woman's journey. I want to be part of it. Why not? I had come after Jannat, Raz, Murder 2, all those films, and I was like, I still did it. So I was like, and people see it as suicidal. I must thank you. I never said thank you on this page. Okay, so it's happening on this. No, because I'll tell you, when we were, I asked, because we were, he's so right, and I'm so thankful to Imran for accepting this part, because this is a real struggle in the industry, and definitely happening with me right now at the moment. And we, ऐसा नहीं है, चालबाज और सीता गीता उस वक्त भी हुई है. Were there any lesser stars? You be talking about Rajni sir, we talking about Sunny sir, we talking about Dharam sir, we talking about Sanjeev Kumar sir, at that time, and they were, और उनका तो double role था. So but these films are few and far between, right? Exactly. कितनी फिल्में आज आप करके देख लीजिए, नहीं होगा. We'll have to cast somebody who's absolutely new and has no image and everything, because the other side says great part, but मैं ये last का वो जो है, मैंने कहा यार अभी भी हम इन्हीं चीज़ों में अटके हुए हैं. मतलब कोरिया के लिए something like a Parasite has won them, you know, international fame. What Hidden Dragon, Crouching Tiger did for China. We are still talking about these things. हम फिल्म पिक्चर बाद में बनाते हैं, पहले ये हम चीजें पहले फंस जाते हैं. Male vanity? No, it comes from male vanity. It also comes from deep insecurity generally. It's not just, it is for female-centric films and all that. लेकिन एक आप अभी कोई भी 2 hero फिल्म बना के देख लो, आप, you know, you will be
for 3 years, 4 years, you'll be going to multiple actors. आप वो film शुरू नहीं कर पाएंगे. Because people are just insecure. That is another department, and of course, this though is another one. जहाँ पे it has to be the hero's journey. वहाँ पे अच्छा ये dialogue. मल्टी-स्टारर्स वो मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा बना लेते थे. उस वक्त I think थोड़ी कम इनसिक्योरिटी होती थी. एक आएगी फिल्म, एक है कुछ 5 दिसंबर को धुरंधर, पता नहीं आदित्य धर ने बनाई है, मैंने सुना. I think the last of the Mohicans. I don't know if we can make too many films like that, but that is the state of our industry right now. And it didn't bother you? It doesn't. I think also what's happened for the new breed, and not just the new breed of actors, there's also social media presence, perception. Perceptions become very important. कि how am I perceived for the audience? आप एयरपोर्ट ट्रिप के लिए भी तैयार होके जाते हो? नहीं, मैं तो एक्चुअली मास्क पहन के जनरली, आज इसलिए हमारे प्रमोशन शुरू हुए तो मैंने मास्क निकाला है. But that is now, it's become, that whole perception has become a game, right? It's about the paps, it's about social media presence, it's about views, likes. सिनेमा कहीं इट्स बिन टक्ड अवे इनटू द कॉर्नर. इसलिए हमारी फिल्में नहीं चल रही हैं क्योंकि नो वन रियली इंटरेस्टेड कि आपकी कहानी कैसी है, आपका स्क्रीन प्ले कैसा है. बस परसेप्शन ऐसा होना चाहिए. हमारा बॉक्स ऑफिस नंबर हम इन्फ्लेट करके डाल देंगे. We're going to segue into different conversations right now, but this is the state of the industry. You're right. I'm aware of conversations where the male actor saying ना ये line मुझे चाहिए, ये उनको नहीं. Just ऐसे makes no sense. I'm like, आप क्या सोच रहे हो? How are you still thinking? हम सोचते थे ये लोग exaggerate करते हैं शायद ऐसी बातें. It's just I never believe in hearsay. Being coming from the industry that we are, unless you see something, in front of your eyes. तो ये हमें करना पड़ेगा ये माइंडसेट चेंज. मतलब हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं और एक्टर्स से लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बट सब ह्यूमंस ही हैं. और वक्त आई थिंक अगर हम बोल रहे हैं बदल गया. ऐसे इंडस्ट्री में टू लिव लाइफ, चूज रोल्स, डू फिल्म्स जहाँ आपके दिल को भी भाए और आप अपने टर्म्स पे करें, ये आप कैसे करती? मेरे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है स्क्रिप्ट. और मैंने कुछ एथिक्स बनाए हैं अपनी लाइफ में. वो अब चाहे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कोई भी हो, कोई भी फिल्म ऑफर करे, वो मैं कॉम्प्रोमाइज़ उस पर नहीं कर सकती. वो है स्क्रिप्ट. मैं नरेशंस नहीं लेती, मुझे नहीं समझ में आता. मैं आपको कोई फिल्म का आइडिया सुनाऊंगी, आपको लगेगा बहुत बढ़िया है, राइट? बट शायद अगर आप स्क्रिप्ट पढ़ें, अगर कोई पढ़े, तो इट डजंट ट्रांसलेट दैट वे. ठीक है, कई बार कुछ बहुत बड़ी बड़ी फिल्में भी बनी हैं जिनके शायद कहते हैं कि कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, डायरेक्टर के बस जहन में थी. कई बार ऐसा हो भी जाता है, बट आई थिंक स्क्रिप्ट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी. डायरेक्टर इंटेंट क्या है फिल्म बनाने का, आप क्या चाहते हैं? एक प्रोजेक्ट बने जहाँ पे हाँ आपने सोच लिया इतना बिजनेस यहाँ से हो जाएगा, इतना बिजनेस थिएट्रिकल, इतना OTT, इट्स इनफ फॉर अस. नो, इट्स नॉट. हमें इतना बड़ा मौका मिला. हम कहाँ से आए हैं, इमरान कहाँ से है, मैं एक छोटे शहर से आई हूँ, सोचा नहीं था कभी यहाँ बैठी होंगी आपके सामने, इनके सामने. मतलब वी ऑल बीन एज फैंस एंड ऑल. एक अपॉर्चुनिटी है कुछ अलग करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, जो दिल को अच्छा लगे. इट्स अ वेरी पैशन ड्रिवन इंडस्ट्री. पहले ज़माने में लोग ऐसा हम सुनते थे कि प्रोड्यूसर्स घर गिरवी रख देते थे. मुगल आज़म जैसी फिल्में ऐसी बनी हैं. आप मत रखिए घर गिरवी, पर एटलीस्ट वो इट्स अ हाई रिटर्न इंडस्ट्री जहाँ पे आप करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न्स जल्दी हैं, बट इट्स ऑल्सो अ गैम्बल. हमें नहीं पता कि क्या चलेगा. ट्रेंड पे आप नहीं कर सकते कि अरे पिछली फिल्म ने ना ऐसा वो गाना बहुत हिट हुआ था तो अब ऐसा ही चाहिए. दैट इज अ प्रॉब्लम, दैट इज अ प्लेग. फॉर्मूला, ओरिजिनल आइडियाज चाहिए. नहीं, फॉर्मूला एक चीज़ है, लेकिन आई थिंक जो अभी ये चीज़ चल पड़ी है, आई थिंक दिस इज कोविड के बाद वी बीन ग्रैपलिंग विद द सिचुएशन. नहीं, सेंसिबल भी नहीं है. वी वांट टू रिवर्स इंजीनियर अ हिट फिल्म. हमें एक फॉर्मूला चाहिए इस चीज़ का. तो जो फिल्म हिट होती है तो हमें लगता है कि अच्छा इसमें ये चीज़ें थी, तो हम इसको रिवर्स इंजीनियर करके एक ऐसी दूसरी फिल्म बनाएंगे जो हिट होगी. इट्स ऑल बिकम वेरी एल्गोरिथम बेस्ड इन द सेंस जहाँ पे हमको सोचना नहीं है नए आइडियाज़ को लेकर, नॉवेल्टी को लेकर. एक हिंदी बेल्ट मास कनेक्ट को हम खो चुके हैं बिकॉज ऑफ अ सर्टन सटल्टी इन आवर सिनेमा दैट्स कम इनटू प्ले. और ये सारी चीज़ें इज कॉस्टिंग अस सो मच. एंड इट्स अ लिटिल बिट ऑफ ग्रैपलिंग विद पोस्ट कोविड टाइम्स. इट्स ऑल्सो लिटिल बिट बिफोर दैट, जहाँ पे कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया था हमारी इंडस्ट्री का, और लोगों को लगा कि हम थोड़ा सा अभी मल्टीप्लेक्स ऑडियंस को अपीज करेंगे क्योंकि वहाँ पे 100 सीट्स में everyone is paying for $500 and $1,000 a ticket. We won't appease those guys who are masses, who are 300 seaters, 500 seaters, but they're paying ₹50. So let's make it thoda sa
वो टेस्ट लेके आते हैं, एक न्यूएंस्ड, एक नीश टेस्ट लेके आते हैं. वहाँ से जो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने देखा था 2012 से लेकर एक ट्रेजेक्टरी है, which of course OTT also took over in a certain sense. That became another player of competition for us. अभी we are grappling. या तो वो high concept फिल्में चलती हैं, या तो वो फिल्में जो really strike a chord with the mass belt, जिसमें गाने होते हैं, it's the hero elevation. That's why South films still do well. They're so vetted and so clear about उनका जो connect होता है अपने audience के साथ, जो कहीं ना कहीं इतने साल में, एक डेकेड में बॉलीवुड खो बैठा है अपनी ऑडियंस के साथ. हक कैसी है? I think it's a concept-driven film, like she said. It is something which drives the thought process, जहाँ पे pro women है, और इस फिल्म में एक मेल बायस को भी दिखाया जाता है. It sheds light on that. हाँ, हमने एक लैंडमार्क केस को एक एग्जाम्पल पर लिया है, वो उस चीज़ को. It is for the younger generations because it's very important कि हम शाबानों और ऐसी औरतों का स्ट्रगल फिर से पब्लिक डोमेन में लेके आएं, जो उस वक्त उनको पता नहीं था कि इसका महत्व क्या है. लेकिन आज ऐसी औरतों के लिए, एंड लाइक आई सेड अर्लियर, एक जनरेशन और कम्युनिटी की बात नहीं है. देयर आर सो मेनी पीपल हु आर कॉट अप इन दिस वेरी कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ लव, रिलीजन, जस्टिस. ये दो मर्की चीजें, आई थिंक वही कॉम्प्लेक्स चीजें जो होती हैं, पर्सनल फेथ और लव मर्की कब से? नहीं, लव मर्की नहीं, टू मर्की थिंग्स लाइक एंड कॉम्प्लेक्स जहां रिलीजन आ गया, हाँ, और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. तो ये दो चीजें जो हैं आज भी ये इश्यूज हैं. दैट्स व्हाई आई फील दिस फिल्म विल स्ट्राइक अ कॉर्ड विद द ऑडियंस. एंड 7th of November, I'm a little anxious and excited. You're anxious? You still get I get anxious before every release. What do you do have for butterflies because you always, there is a hope कि आपकी फिल्म ऑडियंस के साथ कनेक्ट करेगी. अक्खा बॉलीवुड एक साइड हो जाए, इमरान हाशमी एक साइड. Completely. You think this is that kind of a film? Is it that kind of film? Yes, it is. It is? Yes, it is. I think the mark of a good actor is if you can keep reinventing yourself, right? That's longevity. And I think that's what's really worked for Imran. And what he's done in this film is something completely different what people have seen him in different films and loved him for. I've postponed my viewing till now. I have not seen it yet. I know, he's not seen it. I And will every see time it. I would So ask, you're bashing the serial kisser image forever? I have done it long time back. Long time. मैंने 2014 में Let It Go. But it's something that's following me like an albatross even today. अभी ये डायलॉग आया है, तो ये थोड़ा सा चेंज हुआ है फोकस, फोकल पॉइंट किसी और चीज पे आ गया है. But I'm willing to go back to that. I think it dialogue. I'm willing to go back to that. I have no issues. As an actor, I feel you should be open to everything. You should be open to a haq. You should be open to a murder. There is enough place for the niche audience, for the gentry. There is place for the masses. They are very much part of us. We have to entertain them also. And that is being an actor. Why do only one kind of film? Absolutely. And for you, Yami, what is it that you want people to be saying when they leave the theatre after seeing Haq? If I go by my instinct, and I don't think for a while they'll be able to say anything. मैं बहुत ज़्यादा नहीं मुझे बोलना चाहिए अपनी फिल्म के रिलीज़ के पहले, पर मैं मानती हूँ कि मैं बहुत ही एक लेवल हेडेड इंसान हूँ जो अपनी ही फिल्मों को, स्पेशली अगर मैं किसी और को क्रिटिसाइज़ कर सकती, अगर मैं करती हूँ तो पहले मुझे, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपना काम पहले देखूँ, और मैं बहुत ऑब्जेक्टिवली देखती हूँ, बहुत ऑब्जेक्टिवली देखती हूँ. मैं मानती हूँ हक एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है, एक बहुत बैलेंस्ड फिल्म बनी है, इन द सेंस एक फिल्म है, ऐसा नहीं है इट्स देयर टू कॉन्वर्सेशंस, डिबेट्स, डिस्कशंस, उसका बाय प्रोडक्ट है. पहले ये एक फिल्म है. इट लेफ्ट मी स्पीचलेस, एंड I'd like to believe that I watch films as an audience. That time I'm not watching it as an actor. When I read a script, पढ़ती भी मैं as an audience हूँ पहले. वो actor nuances, वो चीज़ें सब बाद में आती. पहले as an audience को सोचती हूँ कि can Yami the artist and Yami the audience meet together? And I feel so far, at least in the last 4-5 years, I have struck a chord with my audience. I still don't know what they like. I still don't know what they want. I still don't know result. Come on, you're fishing now. But I believe they have not let down a good film. They may have
given a lot of love to a film which might be average, Ordinary. very ordinary. That's okay. But I don't think I can't put a finger on something. यार ये film बहुत अच्छी थी और ये चली नहीं film. At least कुछ सालों में तो ऐसा नहीं हुआ है. मैंने देखी है और मैं ये कहूँगी कि जब मैंने ये फिल्म देखी थी तो मुझे लगा कि बहुत देर के बाद एक ऐसी फिल्म है जहाँ एक स्टोरी लाइन है और जो हम फिल्म्स में यूज टू होते थे देखने के लिए, एक इमोशनल टॉटनेस, यू नो कि कोई कुछ बोल रहा है तो आपको यहाँ कहीं वो हिट कर रहा है, दिल पे लग रहा है, वो मुझे इस फिल्म में लगा, जो एक रिफ्रेशिंग चेंज था. एंड ऑफ कोर्स वेरी पावरफुल परफॉर्मेंसेस. एंड आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज आप यहाँ बैठे हैं. मुझे भी ये फिल्म देखने का मौका इसलिए मिला क्योंकि इट वाज एन आइडिएशन मीटिंग दैट वी हैड एंड इट डिड स्ट्राइक अ कॉर्ड एंड बिकॉज मैं थोड़ा पहले से इसमें इन्वॉल्व हो गई थी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भी इस फिल्म में कहीं ना कहीं छोटा सा सही पर स्टेक है. बट द वे जो किरदार उभर के, किरदारों पर बहुत मेहनत की गई है जी. और वो किरदारों पर आजकल मेहनत नहीं होती. आजकल की फिल्म में वो आती हैं जाती हैं, किरदार आते हैं चले जाते हैं, छाप नहीं छोड़ते. इस फिल्म में किरदार छाप छोड़ते हैं, इंक्लूडिंग द लॉयर जिनको आप हटा के फिर अपना केस खुद आर्ग्यू करती हैं. तो मुझे लगता है कि in that sense it's a very refreshing and different film, and what can I say, I can only wish you all the very best. Thank you. And I do hope when people leave the hall after seeing the film, as you said, they're as speechless as you expect them to be. Thank you very Thank much, you. Imran Hashmi, and thank you, Yami Gautam, for Thank joining you. me Thank you, Namita on ma'am. Frankly Speaking. Thank you so Thank much. you. Absolutely. Pleasure talking.